کہا جاتا ہے کہ ایک دن خواجہ نصیر لکڑیاں بیچنے کے لیے بازار گئے۔ جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا جس کے چہرے پر دانائی اور حکمت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا، کیا تم ہی خواجہ نصیر ہو؟ خواجہ نے جواب دیا، ہاں میں ہی خواجہ ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے دانا نے کہا، میں ایک تاجر ہوں اور ایک دور دراز ملک سے آیا ہوں جس کا نام دمشق ہے، اور میں خاص طور پر تمہیں تلاش کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر خواجہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تم مجھے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ دانشمند آدمی نے کہا، ہمارے ملک میں ایک بازار ہے جسے حکمت کا بازار کہا جاتا ہے۔ وہاں ہم حکمت، چالاکی، تدبیر، فہم و فراست اور ذہانت بیچتے ہیں۔ جب میں اس شہر میں آیا تو میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا، تمہاری ذہانت اور حاضر جوابی کے چرچے تھے، تو میں نے دل میں کہا کہ خواجہ کو ضرور حکمت کے بازار میں آنا چاہیے۔ خواجہ نے شک کی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا بات ہے؟ کہیں تم مجھے دھوکہ دینے تو نہیں آئے؟ دانشمند نے جواب دیا، نہیں خواجہ، میں تمہیں دھوکہ دینے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم وہاں آؤ، حکمت کے بازار میں اپنی چالاکی، ذہانت اور عقل فروخت کرو اور تم بہت مالدار ہو کر واپس آؤ گے۔ خواجہ نے کہا، اچھا میں کوشش کروں گا، مگر میں اس دور دراز ملک تک کیسے پہنچوں گا؟ بوڑھے نے کہا، سن لو خواجہ، یہ میرا گدھا لے لو اور اس پر سوار ہو جاؤ، یہ خود راستہ جانتا ہے، چلتا رہے گا، اور جب یہ رک جائے تو سمجھ لینا کہ تم دمشق کے دروازوں تک پہنچ چکے ہو۔ خواجہ گھر لوٹے اور اپنی بیوی زینب کو ساری بات بتائی۔ زینب نے خبردار کرتے ہوئے کہا، اے خواجہ، وہ آدمی ایک فریبی اور دھوکے باز ہے، وہ تم سے مذاق کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں جا کر لوگ تم پر ہنسیں۔ خواجہ نے جواب دیا، نہیں زینب، مجھے لگتا ہے وہ سچا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے اپنا گدھا دے دیا۔ زینب بولی، لیکن اے خواجہ، تم نہیں جانتے کہ یہ گدھا تمہیں کہاں لے جائے گا، میرا دل اس کہانی سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ اس رات خواجہ سو نہ سکے، وہ مسلسل حکمت کے بازار کے بارے میں سوچتے رہے۔ پھر جوش سے زینب سے کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو زینب، میرے پاس کتنی چالاکی، عقل اور ترکیبیں ہیں، اگر میں وہاں جا کر یہ سب بیچ دوں تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے، میں تمہارے لیے بادشاہ کے محل سے بھی بڑا محل بناؤں گا۔ زینب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے آدمی، کیا تم اب تک خواب اور وہم سے باز نہیں آئے؟ خواجہ نے پختگی اور عزم کے ساتھ جواب دیا، سن لو زینب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے ضرور حکمت کے بازار جانا ہے اور میں وہاں موجود ہر شخص پر غالب آؤں گا۔ زینب نے فکرمندی سے کہا، اور اگر یہ سب ایک فریب ہوا، اگر وہ آدمی تم پر ہنس رہا ہو اے خواجہ؟ خواجہ نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، میں زیادہ نقصان میں نہیں رہوں گا زینب، میں کچھ رقم ساتھ لے جاؤں گا، اگر وہ آدمی جھوٹا نکلا تو میں دمشق سے کوئی سامان خرید لوں گا اور واپس آ کر اپنے ملک بصرہ کی سرزمین میں بیچ دوں گا۔ زینب نے آہ بھرتے ہوئے کہا، جیسا تم چاہو کرو خواجہ، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ اس کے بعد خواجہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان، پانی اور زاد راہ تیار کیا اور اس دانا آدمی کا گدھا بھی ساتھ لے لیا، ساتھ ہی اپنا ذاتی گدھا بجلی بھی لے لیا۔ خواجہ دانا آدمی کے گدھے پر سوار ہوئے اور بجلی پر اپنا سامان، کپڑے اور سفر کی ضرورتیں لاد دیں۔ وہ دانا آدمی کا گدھا چلتا رہا اور خواجہ بجلی کی رسی پکڑے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ صحرا ریگستان کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ وہاں تمام راستے ایک جیسے دکھائی دیتے تھے، ایک راستے کو دوسرے سے پہچاننا ممکن نہ تھا۔ خواجہ حیران ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ اسی دوران انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس پر وقار اور دانائی نمایاں تھی۔ خواجہ نے اس سے کہا، اے دانا بزرگ، میں دمشق جانا چاہتا ہوں، بتائیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دانشمند نے جواب دیا، اے خواجہ، تمہیں اتنے دور دراز ملک جانے پر کیا چیز مجبور کر رہی ہے؟ خواجہ نے کہا، اے حکیم، میرے پاس کچھ چالیں ہیں جنہیں میں بیچنا چاہتا ہوں، میرے پاس مکر، فریب اور ذہانت ہے۔ بوڑھے حکیم نے کہا، تو تم حکمت کے بازار جانا چاہتے ہو؟ ایک بات یاد رکھو، جو وہاں جاتا ہے وہ اکثر واپس نہیں آتا۔ خواجہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں ہے بزرگ؟ حکیم نے کہا، اس لیے کہ حکمت کے بازار میں اگر تم عقلمند ہو تو وہاں تم سے زیادہ عقلمند موجود ہیں، اگر تم ذہین ہو تو وہاں تم سے زیادہ ذہین ہیں، اور اگر تم ماہر ہو تو وہاں تم سے زیادہ ماہر ہیں۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ دجال اور فریبی ہیں، اور وہ تمہیں اس طرح دھوکہ دیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ لیکن خواجہ نے پھر بھی حکمت کے بازار جانے پر اصرار کیا اور کہا، اے بزرگ، براہ کرم مجھے راستہ دکھا دیجیے۔ حکیم نے کہا، خواجہ، میں تمہیں گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر تم تینوں کے درست جواب دے دو
तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, और अगर तुम एक सवाल का भी जवाब न दे सके तो तुम्हें वहीं से वापस लौट जाना होगा और उस शहर के करीब भी नहीं जाना। ख्वाजा ने इत्माद से कहा, ठीक है ए हकीम, मैं तैयार हूँ। हकीम ने पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जिसे तुम अंधेरे में रोशनी से ज़्यादा देखते हो और जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो गायब हो जाती है। ख्वाजा काफ़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, इसका जवाब साया है, क्योंकि साया अपनी फितरत में अंधेरा होता है और जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो गायब हो जाता है, और अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो तो तुम्हारा अपना साया सामने वाले साये को ढांप लेता है। फिर ख्वाजा ने हकीम की तरफ देखा और कहा, अब बताइए ए दाना बुजुर्ग, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या ये जवाब दुरुस्त नहीं? हकीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शाबाश ख्वाजा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं। ख्वाजा ने जोश से कहा, अच्छा मुझे दूसरा सवाल बताइए। हकीम ने पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो बग़ैर टांगों के चलती है, बग़ैर ज़बान के बोलती है, पाँव पर नहीं चलती बल्कि अपने सर पर चलती है? ख्वाजा ने फ़ौरन जवाब दिया, वो कलम है। कलम तब चलता है जब हम उससे लिखते हैं, इसका सर ही चलता है और वो ज़बान के बग़ैर लिखकर बात करता है। हकीम मुस्कुरा दिया और बोला, अब सिर्फ एक सवाल बाकी है ख्वाजा, वो कौन सी चीज़ है जिसे तुम दिन में एक बार देखते हो और रात में 1000 बार? ख्वाजा ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, वो सितारे हैं। दिन में हम सिर्फ एक सितारा देखते हैं, यानी सूरज, और रात में बेशुमार सितारे नज़र आते हैं। हकीम ने कहा, शाबाश ख्वाजा, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई हिकमत के बाज़ार जाने के काबिल हो। इसी रास्ते पर चलते रहो, जो गधा तुम्हारे साथ है वो उसी समझ से आया था, क्योंकि सहरा में रास्ते एक जैसे लगते हैं। आगे बढ़ते रहो, तुम्हें एक चट्टान मिलेगी। जब गधा उस चट्टान को देखेगा तो खुद रास्ता पहचान लेगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। ख्वाजा ने हकीम का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चल पड़े। वो चलते रहे, यहाँ तक कि शहर के दरवाज़ों तक पहुँच गए। ख्वाजा दमिश्क के शहर में दाखिल हुए और दाखिल होते ही लोगों से हिकमत के बाज़ार के बारे में पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया, सीधे आगे बढ़ते रहो, तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां न अक्लमंद और बेवकूफ़ में फ़र्क समझ आएगा, न धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले में। ख्वाजा पूछते पूछते आखिरकार हिकमत के बाज़ार तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बाज़ार के दरवाजे पर एक मुहाफ़िज़ गार्ड खड़ा है। ख्वाजा ने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझे अंदर जाने की इजाज़त दीजिए। मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया, अंदर जाने से पहले तुम्हें शर्तें जानना होंगी। ख्वाजा ने पूछा, वो शर्तें क्या हैं? मुहाफ़िज़ ने कहा, हिकमत के बाज़ार में सिर्फ वही कामयाब होता है जो होशियार, मक्कार और चालाक हो। सादा लौह और बेवकूफ़ लोग यहाँ धोखा खाते हैं और नुकसान उठाते हैं। ख्वाजा ने एतमाद से कहा, ठीक है, मैं इस शर्त को मानता हूँ। मुहाफ़िज़ ने कहा, तो फिर दाखिले की कीमत अदा करो। ख्वाजा ने पूछा, दाखिले की कीमत कितनी है? मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया, यहाँ पैसों से नहीं, अक़ल से कीमत अदा की जाती है। तुम्हें मुझे धोखा देना होगा और अपनी ज़हानत साबित करनी होगी, यही हिकमत के बाज़ार में दाखिले की कीमत है। ख्वाजा ने कहा, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कि मैं तुम्हें धोखा दूं और तुम पर हंसूं? मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया, हाँ, इसकी इजाज़त है। ख्वाजा ने सुकून से कहा, ठीक है, बात तय हो गई। सच ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा बड़ा राज बता सकता हूँ जिसे कोई नहीं जानता, और अगर तुमने उसे जान लिया तो तुम दमिश्क के आधे लोगों पर काबू पा सकोगे। मुहाफ़िज़ ने दिलचस्पी से पूछा, वो राज क्या है? ख्वाजा ने कहा, सबसे पहले ये देख लो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा, कहीं कोई छुपा तो नहीं। मुहाफ़िज़ इधर उधर देखने लगा और जगह का जायज़ा लेने लगा। जैसे ही उसने सर मोड़ा, ख्वाजा ने मौका गनीमत जाना और दौड़ लगाकर बाज़ार के अंदर कूद गए। मुहाफ़िज़ ने पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे नज़र दौड़ाई तो ख्वाजा गायब थे। वो दाएं बाएं देखने लगा, तब उसने ख्वाजा को बाज़ार के अंदर देखा। ख्वाजा हंसते हुए बोले, देखा, तुमने कहा था मुझे धोखा दो और मैंने तुम्हें धोखा दे दिया ए मुहाफ़िज़। मुहाफ़िज़ हंस पड़ा और कहा, अच्छा ये बात मैं मान लेता हूँ ख्वाजा। जब ख्वाजा बाज़ार में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब मंज़र देखा। बहुत से लोग थे जो अनोखे लिबास पहने हुए थे और हर एक के सामने कुछ लोग ज़मीन पर छोटी चटाइयाँ बिछाकर बैठे थे। उनके सामने चमड़े से बनी पुरानी तहरीरें थीं, कुछ संदूक बेच रहे थे और कुछ के सामने शीशियाँ रखी थीं। ख्वाजा ने दुकानें भी देखीं जिन पर अजीबो गरीब तख्तियाँ लगी थीं। एक पर लिखा था, वो हिकमत सीखो जिससे तुम लोगों पर हंस सको। दूसरी पर लिखा था, अंदर आओ और ऐसे जुमले खरीदो जिनसे तुम हर बहस जीत सको। और एक तख्ती पर लिखा था, ऐसी बातें और हिकमतें खरीदें जो एक ही दिन में आपको अमीर बना दें। ख्वाजा ये सब देखकर हैरान रह गए।
बाजार में सख्त भीड़ थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई खाने पीने की चीज़ नहीं बेच रहा था। न टमाटर वाला, न आलू वाला, न खीरों वाला, न फल फरोश, न ही किसी किस्म का खाना। ख्वाजा ने दिल ही दिल में सोचा, यहाँ बर्तनों का ताजिर कहाँ है? तांबे का सामान बेचने वाला कहाँ है? शहद का ताजिर कहाँ है? लेकिन वहाँ इनमें से कोई भी मौजूद न था। पूरा बाजार सिर्फ हिकमतों, नसीहतों और अक्ल की बातों से भरा हुआ था। जब ख्वाजा हिकमत के बाजार में घूम रहे थे तो उनकी नज़र एक पुरअसरार, रहस्यमयी बूढ़े आदमी पर पड़ी जो बाजार के खामोश कोने में बैठा था। उसकी दुकान पर कोई तख्ती न लगी थी, दुकान बहुत पुरानी लगती थी और उसके सामने कदीम चमड़े के अवराक, पन्ने रखे थे। ख्वाजा उसके करीब गए और हैरत से पूछा, तुम क्या बेचते हो? बूढ़े ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं वही बेचता हूँ जिसकी तुम तलाश में हो। मैं हिकमत, होशियारी, मक्र और जहानत बेचता हूँ, और मैं हिमाकत, बेवकूफ़ी और जानबूझकर गाफिल बनने का फ़न भी बेचता हूँ। ख्वाजा ने कहा, तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या खरीदना चाहिए, अक्ल या हिमाकत? बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो तुम खुद जान लोगे कि तुम्हें क्या खरीदना चाहिए। ख्वाजा ने दुकान के अंदर झांका तो उन्हें हिरन की खाल से बनी एक लिपटी हुई तहरीर नजर आई। उन्होंने पूछा, ऐ आदमी, ये लिपटा हुआ कागज़ क्या है? बूढ़े ने कहा, अगर तुमने इसे खरीद लिया तो ये तुम्हें तुम्हारे शहर का सबसे अमीर आदमी बना देगा। ख्वाजा हैरान हो गए और बोले, और इसकी कीमत क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, इसकी कीमत सिर्फ एक सोने का दिनार है, लेकिन इसके अंदर ऐसी हिकमत है जो तुम्हें बहुत सा सोना कमा कर देगी। ख्वाजा मुस्कुरा दिए, सादगी से अपनी थैली से एक सोने का दिनार निकाला और बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने लिपटी हुई तहरीर ख्वाजा के हवाले कर दी। ख्वाजा ने तजस्सुस से उसे खोला तो उसमें लिखा था, जो कुछ तुम देखो उस पर भी यकीन न करो और जो कुछ तुम सुनो उस पर भी नहीं। ख्वाजा ने हैरत से बूढ़े की तरफ देखा और कहा, ये क्या है? ये तो मुझे अमीर बनाने वाली बात नहीं लगती। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ए ख्वाजा, तुमने ऐसी हिकमत खरीदी है जिसकी कोई कीमत नहीं। ख्वाजा ने कहा, अच्छा, मैंने हिकमत सीख ली। फिर वो बाजार के बीचों बीच जा खड़े हुए और ऊंची आवाज़ में पुकारने लगे, ए बाजार वालों, ए हिकमत के बाजार वालों, आओ आओ। लोग हर तरफ से उनके गिर्द जमा हो गए। ख्वाजा ने हिरन की खाल का वो लिपटा हुआ वर्क हाथ में उठाया और मकर्राना और रेटोरिकल अंदाज में कहा, मेरे पास ऐसी हिकमत है जिसने मुझे मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। मैंने इसे सिर्फ एक दिनार में ख़रीदा था, और जो मुझे एक सोने का दिनार देगा मैं उससे वो हिकमत बताऊंगा जो उसे पूरी ममलकत का सबसे अमीर इंसान बना देगी। लोग हैरत से कहने लगे, सिर्फ एक दिनार में? ख्वाजा ने पूरे एतमाद से कहा, हाँ, इस हिकमत में ऐसा सोना है जिसकी कोई गिनती नहीं। लोगों ने कहा, चलो एक दिनार देने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही क्या होगा। एक एक करके लोगों ने दिनार निकाले। 50 आदमियों ने ख्वाजा को दिनार दे दिए। यूं ख्वाजा के पास 50 सोने के दिनार जमा हो गए। ख्वाजा ने वही हिरन की खाल खोली और ऊंची आवाज़ में पढ़ा, जो कुछ तुम देखो उस पर भी यकीन न करो और जो कुछ तुम सुनो उस पर भी नहीं। फिर उन्होंने दूर बैठे बूढ़े को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक दिनार कमाया और मैंने अपने एक दिनार के अलावा 50 दिनार कमा लिए। ख्वाजा बाजार में आगे बढ़े तो उन्होंने एक आदमी को आवाज़ देते सुना जो कह रहा था, आओ आओ, ऐ शख्स, मुझसे ऐसी हिकमत खरीदो जो तुम्हें हर शर्त जितवाने वाली है। ख्वाजा ने उससे पूछा, और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह हिकमत वाकई काम करेगी? बेचने वाले ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, अगर ये हिकमत तुम्हारे काम न आई और तुम इसके ज़रिए कोई भी शर्त न जीत सके तो मेरे पास वापस आ जाना। मैं तुम्हें उस रकम से 2 गुना वापस कर दूंगा जो तुमने अदा की होगी। ख्वाजा ने सवालिया अंदाज में कहा, और मैं कैसे यकीन करूं कि अगर ये चाल नाकाम हो गई तो तुम वाकई मेरे पैसे वापस करोगे? आदमी मुस्कुराया और बोला, यही तो इस चाल का राज है ख्वाजा। ख्वाजा हंस पड़े और बोले, अच्छा, जब तुम अपनी हिकमत पर इतने ही पुरएतमाद हो तो मैं तुम्हें अभी कुछ भी अदा नहीं करूंगा। पहले हिकमत लूंगा, खुद आजमा कर देखूंगा, फिर पैसे दूंगा। बेचने वाले ने कहा, नहीं ख्वाजा, ये बाजार के उसूलों के खिलाफ है। यहाँ पहले कीमत अदा की जाती है, फिर हिकमत खरीदी जाती है और उसके बाद जाकर आजमाई जाती है। ये जायज़ नहीं कि तुम हिकमत लो, आजमाओ और अगर फ़ायदा ना हो तो वापस आकर कीमत मांगो। ख्वाजा हंसकर बोले, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम खुद भी अपनी हिकमत पर पूरा यकीन नहीं रखते। ये सुनकर बेचने वाले का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से बोला, लगता है तुम इतने आसान नहीं हो ख्वाजा। ख्वाजा उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। बाजार की दुकानों के दरमियान चलते चलते अचानक उनकी नज़र फिर एक आदमी पर पड़ी जो एक चटाई पर बैठा था और उसके सामने एक छोटा सा संदूक बॉक्स रखा था। ख्वाजा उसके करीब गए और पूछा,
तुम इस संदूक में क्या बेचते हो? उस आदमी ने सुकून से जवाब दिया, मैं सच बेचता हूँ, बहुत ही सस्ते दामों। ख्वाजा हैरान होकर बोले, और तुम किस किस्म का सच बेचते हो? बेचने वाले ने कहा, मैं तुम्हें वो कड़वा सच बेचता हूँ जिसे तुम कबूल तो नहीं कर सकोगे, लेकिन उसका इनकार भी नहीं कर पाओगे। फिर वो ऊंची आवाज में पुकारने लगा, सच खरीदो, 1 दिरहम में सच, सिर्फ 1 दिरहम। ख्वाजा ने दिल में सोचा, मैंने तो काफी पैसा कमा लिया है, 1 दिरहम दे देने में क्या हर्ज है। उन्होंने थैली से 1 दिरहम निकाला और बेचने वाले को देकर कहा, चलो मुझे भी अपनी कोई एक हकीकत दे दो। बेचने वाले ने एक छोटी सी पर्ची ख्वाजा के हवाले करते हुए कहा, ये वो हिकमत है जो तुम्हें सच सिखाएगी। ख्वाजा ने कागज खोला तो उस पर लिखा था, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो किसी ऐसी बात को जानने के लिए पैसे दे जिसे वो पहले ही जानता हो। ख्वाजा जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने वो पर्ची उठाई और बाजार के एक भीड़ वाले हिस्से में जाकर बुलंद आवाज से पुकारने लगे, कौन है जो कड़वा सच जानना चाहता है? वो सच जिसे तुम कबूल नहीं करोगे मगर उसका इनकार भी नहीं कर सकोगे। लोग जोश से बोले, हम जानना चाहते हैं ए ख्वाजा। ख्वाजा ने कहा, ठीक है, जो भी कड़वा सच जानना चाहता है वो सिर्फ आधा दिरहम अदा करे। वहां खड़े 10 आदमी आगे बढ़े और हर एक ने आधा दिरहम अदा किया। ख्वाजा ने लिफाफा खोला और उनके सामने ऊंची आवाज में पढ़ा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो किसी ऐसी बात को जानने के लिए पैसे दे जिसे वो पहले ही जानता हो। लोग जोर से हंस पड़े। ख्वाजा मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि ये सच तुम कबूल नहीं करोगे और फिर भी इसका इनकार नहीं कर सकोगे? लोग बोले, बिल्कुल दुरुस्त, हम इसे कबूल नहीं करते क्योंकि हम ये बात पहले से जानते थे, लेकिन वाकई सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है जो ऐसी बात के लिए पैसे दे जो वो पहले ही जानता हो। अचानक इसी दौरान बाजार के बीचों बीच एक आदमी की चीख सुनाई दी, संदूक, मेरा संदूक चोरी हो गया, राजों का संदूक चोरी हो गया। ख्वाजा भी लोगों के साथ दौड़ते हुए उस आवाज़ की तरफ पहुंचे और उस आदमी से पूछा, क्या हुआ है? वो आदमी घबराहट में बोला, मेरा वो संदूक जिसमें कदीम हुक्मरानों के तमाम राज महफूज थे चोरी हो गया है। उसी में पुरानी तहजीबों के असरार, अव्वलीन लोगों की दास्तानें और कीमती राज मौजूद थे। यकीनन जिसने इसे चुराया है वो नहीं चाहता कि लोग इन राजों को जानें। ख्वाजा ने गौर से सोचते हुए कहा, तो फिर चोर या तो किसी खास राज की तलाश में है या वो किसी खतरनाक राज को छुपाना चाहता है, क्योंकि उसने माल नहीं चुराया बल्कि उससे कहीं गहरी चीज़, एक छुपा हुआ राज चुरा लिया है। फिर ख्वाजा ने संदूक के मालिक की तरफ रुख किया और कहा, पहरेदार को हुक्म दो कि जब तक संदूक न मिल जाए कोई भी इस बाजार से बाहर न जाए, और तुम यकीनन संदूक की शक्ल अच्छी तरह जानते हो। आदमी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ख़ास संदूक है, जवाहरात से मुज़य्यन, सजा हुआ। ये सुनकर ख्वाजा हैरत से बोले, क्या जवाहरात से सजा हुआ संदूक? हालांकि उसमें तो हिकमतें और राज थे, खजाना नहीं। अगर मकसद सिर्फ राजों की हिफाजत था तो फिर उसे जवाहरात से सजाने की क्या ज़रूरत थी? फिर ख्वाजा कुछ देर खामोश हो गए और इस बात पर गौर करने लगे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी जवाहरात का मालिक हो और उनसे हिकमत के संदूक को सजा दे, और जो शख्स जवाहरात रखता हो क्या वो बाजार में बैठकर पुराने राज बेचेगा? नहीं, इस मामले में ज़रूर कोई चाल है। ये लोगों और ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए एक ज़हीन फरेब है। इतने में ताजिर मुस्कुराया और ख्वाजा की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ख्वाजा तुम बहुत होशियार हो, क्या ख्याल है तुम मेरी मदद करो संदूक ढूंढने में? अगर हमें वो मिल गया तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा राज अता करूंगा। ख्वाजा ने जवाब दिया, क्या तुम ही वो शख्स नहीं जिसे उस संदूक में मौजूद हिकमतों और राजों का इल्म है? ताजिर ने कहा, नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने ये संदूक ज्यों का त्यों खरीदा था। ये एक कदीम कब्रिस्तान में पाया गया था जो अव्वलीन लोगों की दास्तानों से जुड़ा हुआ है। किसी ने इसे वहाँ पाया और मैंने उससे ख़रीद लिया। इसे खोलने से पहले ही उसने मुझे बताया था कि इस संदूक में राजों का राज मौजूद है। जब ख्वाजा उसकी बातें गौर से सुन रहे थे तो उनकी नज़र एक अजीब आदमी पर पड़ी जो उनके करीब से गुजर रहा था। वो सिया अबाया ब्लैक क्लोक पहने हुए था और यूं लगता था जैसे उसके नीचे कोई चीज़ छुपी हुई हो। वो बार बार इधर उधर देख रहा था और लोगों को मशकूक नज़रों से घूर रहा था। ख्वाजा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए ताजिर से कहा, इस आदमी को देखो, ये अपनी अबाया के नीचे कुछ छुपा रहा है। जाकर देखो, शायद यही तुम्हारा चोरी शुदा संदूक उठाए हुए हो। ताजिर उस आदमी के पास गया और वाकई उसके पास वही संदूक था, मगर जब उसने उसे खोला तो वो बिल्कुल खाली निकला। ख्वाजा हैरत से बोले, यह क्या, संदूक खाली है? ये कैसे हो सकता है? ताजिर मुस्कुराकर बोला, दरअसल ये आदमी मेरा भाई है।
ہم نے یہ ساری چال صرف اس لیے رچی تھی تاکہ لوگوں کا تجسس بڑھے، وہ ہمارے گرد جمع ہوں اور دوسرے تاجروں کو چھوڑ کر ہمارے گلی کوچے میں آ جائیں۔ خواجہ نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو دوسرے تاجروں کی طرح عام طریقے سے بھی بیچ سکتے تھے۔ اس نے جواب دیا، میں سارا دن بیٹھا رہا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ خریدا، نہ کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن جب میں نے کہا کہ صندوق چوری ہو گیا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی قیمت بڑھ گئی اور سب اس کے اندر موجود راز جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ خواجہ نے ارد گرد دیکھا تو انہیں ایک پرانی گلی نظر آئی جہاں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا۔ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے اس گلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پرانی دکان کے سامنے پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک کتاب رکھی تھی جس پر گرد دھول جمع ہوئی تھی۔ خواجہ نے اس سے پوچھا، اے بزرگ، بتاؤ تم کیا بیچتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو خواجہ۔ یہاں کا ایک تاجر ملکوں گھومتا ہے اور جب کسی چالاک یا ہوشیار آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے یہاں بلا کر کہتا ہے، اگر تم اس بازار میں آؤ گے تو اپنے گاؤں کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے۔ یوں اس نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور یہ جگہ جو پہلے سوق وراقین کہلاتی تھی، جہاں کاغذ بنایا اور بیچا جاتا تھا، وقت کے ساتھ سوق حکمت کا بازار بن گئی۔ پہلے لوگ یہاں کاغذ خریدتے تھے، پھر ان پر حکمتیں اور اقوال کہاوتیں لکھے جانے لگے تاکہ گھروں میں لٹکائے جائیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں خریدنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ بڑا تماشا اور میلہ ایجاد کیا جو تم آج دیکھ رہے ہو تاکہ لوگ دوبارہ آئیں۔ خواجہ نے کہا، لیکن میں تو یہاں آیا ہوں، نہ کوئی خزانہ دیکھا، نہ دولت، نہ وہ امیری جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، کیا خیال ہے خواجہ، اگر میں تمہیں ایسا خزانہ دے دوں جو تمہیں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دے، ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہ ہو؟ میں یہ خزانہ تمہیں دوں گا مگر ایک شرط پر، تم فوراً اپنے وطن واپس جاؤ گے، کبھی دوبارہ اس بازار میں نہیں آؤ گے، کیونکہ جیسا کہ تم نے دیکھا، دجالوں اور فریبیوں نے اس بازار کو لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ خواجہ نے کہا، میں تمہاری شرط قبول کرتا ہوں۔ بوڑھے حکیم نے کہا، تو پھر میں تمہیں وہ خزانہ دوں گا، لیکن بازار کے باہر، سوق حکمت سے باہر۔ خواجہ نے جوش سے کہا، مجھے منظور ہے۔ خواجہ اپنا گدھا بجلی لے کر بازار سے باہر نکل آئے۔ جب وہ کافی دور پہنچ گئے تو بوڑھے نے کہا، اب میں تمہیں خزانہ دیتا ہوں اور وہ اسی کاغذ کے اندر موجود ہے۔ خواجہ نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ خزانے کا نقشہ ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں، یہ خزانے کا نقشہ ہے، لیکن خبردار، ابھی اسے مت کھولنا، پہلے اپنے وطن پہنچو، راستے میں چوروں سے ہوشیار رہنا، اور جب گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تب اسے کھولنا۔ خواجہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گدھے بجلی پر سوار ہو کر وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ ان کی بیوی زینب نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا لائے ہو خواجہ؟ خواجہ مسکرا کر بولے، کچھ دینار اور درہم تو لایا ہوں، مگر اصل خزانہ اس کاغذ میں ہے۔ ایک حکیم نے کہا ہے کہ یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں ساری زندگی اسی سے جیتا رہوں گا۔ زینب بے سے بولی، پھر جلدی کرو، کاغذ کھولو اور مجھے بھی خزانہ دکھاؤ۔ خواجہ نے جوش سے کاغذ کھولا تو اس پر خوبصورت خط لکھائی میں لکھا تھا، نات ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خواجہ ہنس پڑے اور زینب کی طرف دیکھ کر بولے، واقعی زینب، نات ہی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اس پر راضی ہو جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی دن سے خواجہ اور ان کی بیوی زینب اطمینان، خوشی اور سکون سے بھری زندگی گزارنے لگے۔